You can say that's an alternative name. Text functions. Okay. And the text functions that we will be implementing: left, right, mid, length, trim, concat, find, search. These are the commonly used text functions. Okay. Then upper, lower, proper. Okay. Let's take up simple example. Then we'll move on to the questions. Let's say we have the player names. Okay. And the names are, let's say Rohit Sharma. Okay. Then we have Sachin. Okay. And then we take R. Ashwin. These are the names. Okay. For these people, you want to have their names separated out in two columns. First is going to be the first name. Second is going to be the last name. ये करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा? रोहित, Sachin, R. dot. Correct? Here we are going to have Sharma, Tendulkar and Ashwin. Concept clear? If I want to have Rohit in the cell, which function to use? Left or right? Left. For Sharma? Right. Logic is clear. When to use left, when to use right. Okay. Let's fetch the names. And before that, let's do one thing. Let me have one more function here. Length. How many letters are there in this first player's name? Total length kitni hai? Rohit has 5 letters. Sharma has 6 letters. 5 plus 6, 11. Beech mein ek space hai. ठीक है? How will you display that? So we have a direct function called length. You will apply length function on this cell. What can I freeze at bare minimum? D31 से क्या freeze कर सकते हो? Column. Reason? Formula नीचे drag होगा. Correct? So we can freeze the column. Fine? Right? Now you want to get the first name. Equals to left. Look at the parameters. What's the first parameter? Text. That means you want to apply left on which function? Which cell? Where you want to apply? Rohit Sharma. We can freeze the column. What's the second parameter? Number of characters that you want to fetch from the left side. How many characters you want from the left side? 5. If I write 5, will this work for the other players? Formula तो नीचे drag करना है ना? Okay, and if I try to do that, Rohit का answer तो सही है, but look at the others. Problem है ना? So when you're working with such things, you can't make your formula static. Static means आप एक number खुद से नहीं डाल सकते हो. You have to write a logic in such a way that if I'm talking about Rohit Sharma, Rohit के लिए 5 should be the number. If I'm talking about Sachin, it should be 6. R Ashwin के लिए 2. R and dot. Okay. What is the common thing that you find in these 3 names, which can help me out to separate the 2 things? Space. Now, what does the logic say? Find the space in all the 3 names. Space से पहले first name, space के बाद last name. Logic is clear. अब वही logic यहाँ लगाना है. The next thing that we can do is finding the position of space in each player's name. Okay. So when you want to find the position in a certain column of anything, let it be a number, let it be a special character, let it be a alphabet,
किसी का भी अगर आपको पोजीशन नंबर चाहिए तो we have two functions with us. One is called find, second is called search. Okay, let's do it over here using find. This find function is very important. इसके बिना text functions doesn't work. Find you will be using a lot. Okay, so let's use find equals to find. Look at the number of parameters, guys. What's the first parameter? Find text, meaning what do you want to find? What do you want to find? Space. So space is what? Empty quotes. Text in Excel is represented with a double quotes. SQL के अंदर single quotes. Power BI double quotes. Python any single double दोनों चलते हैं. Okay. You want to find space. Where you want to find? That's the second parameter. Within the text. What's the text? Rohit Sharma. Done. What's the third parameter that you see? Starting number means कहां से ढूंढना शुरू करोगे. मेरे को तो अभी फर्स्ट से ही देखना है. अगर मान लो बीच में मिडल नेम भी होता फिर मैं बोलती कि पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए मुझे, तो विल टेक दैट केस सेपरेटली. ओके, अभी के लिए लेट्स वर्क विद फर्स्ट नेम लास्ट नेम. फाइंड इज क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैव एनी डाउट? ऑनलाइन गाइस, एनी डाउट? चलो. Now, in the latest versions of Excel, when I say latest version, that means anyone who is using Excel versions post 2016. अगर आप ये फॉर्मूला को सेलेक्ट करो, you can see there is a little sample coming up at the top. That basically returns कि क्या आउटपुट आने वाला है. ये फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा. Okay. Now I'm wondering why it is giving me 1. Did I miss something? हाँ, मैंने कोट्स के बीच में स्पेस नहीं दिया. My bad. So what is the sample that you can see? 6. ठीक है, तो is the position number of space 6? रोहित के कितने लेटर्स हैं? 5. फिफ्थ 6 पोजीशन पे कौन है? स्पेस. Done. Let's drag this formula. It's fine. Correct. अब आ जाओ फर्स्ट नेम के ऊपर. How many number of characters do you want from the left of Rohit Sharma? 5 चाहिए, बट मैं 5 डायरेक्टली तो नहीं लिख सकती हूँ. हमने क्या लॉजिक बनाया कि फाइंड द स्पेसेस एवरीवेयर. स्पेस से पहले फर्स्ट नेम, स्पेस के बाद लास्ट नेम. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्पेस? 6. तो आई शुड नॉट राइट 6. आई कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर. करेक्ट. बट व्हेन आई सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर इट विल गिव यू व्हाट? रोहित के बाद स्पेस भी आएगा. यस और नो? You are saying number of characters from the left side of D31 should be something from H31. H31 में कौन है? 6. ठीक है. अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आउटपुट में कुछ गलती नहीं है, राइट? बट अगर आप इसको चेक करो यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी अ स्पेस. हाउ कैन यू जज दैट? लेंथ लगा दो इसके ऊपर दोबारा. लेंथ ऑफ दिस सेल 5 आना चाहिए. कितना आ रहा है? दैट मीन्स एक्स्ट्रा स्पेस है. ठीक है. Now the question is, how will you make this 6 as 5? 6 को 5 कैसे बनाओगे? -1. Okay. So what will you write over here? -1. Okay. Look at Sachin Tendulkar. What is the space at the name of Sachin Tendulkar? 7. You want Sachin. Sachin के कितने characters हैं? 7 को 6 कैसे बनाओगे? -1. So this is a general formula. When you're trying to find something, the actual number of characters will always be find -1. Okay. Now it's absolutely working right. Say it. Any doubts? How will we next the formula? That we'll do later on. Let me complete the last name, then we'll do it. Okay. How will you get the last name, guys? Which function? Right. Look at the parameters. Parameters are still same as that of left. किसके ऊपर right लगाना है? Text. Okay. How many number of characters you want from the right side? अब वो कैसे डिसाइड करोगे? शर्मा के लिए 6 है, तेंदुलकर के लिए कितने? आई थिंक 9 बनते हैं.
अब वो कैसे डिसाइड करोगे? स्पेस प्लस 1 अगर बोलोगे तो वो 6 + 1 7 हो जाएगा। माइनस किसको करोगे? लेंथ को स्पेस से माइनस करोगे। यस, दैट्स अ करेक्ट लॉजिक। इफ यू आर ट्राइंग टू से कि हम लोग यहाँ पे स्पेस प्लस 1 कर दें, वो ऐसा नहीं चलेगा कि वो राइट में देखना शुरू कर देगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H31? 6 6 + 1 कितना हुआ? 7। तो वो क्या बोलेगा? 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड। शर्मा के कितने कैरेक्टर्स हैं? तो एक स्पेस भी तो है इससे पहले, वो 7 हो जाएगा। ये देखो, ऐसे पहले स्पेस आ रही है। ओके, तो करेक्ट लॉजिक ओवर हियर इज व्हाट? राइट ऑफ दिस सेल, व्हाट वी नो, हमारे हैंड्स में भी क्या है? आई नो द लेंथ ऑफ द फुल सेल, I know the length of first name, I know the length of position also, position number of space also. ठीक है, अगर मैं पूरे लेंथ में से रोहित को माइनस कर दूं, पीछे क्या बचेगा? शर्मा। हाँ, उसको फिर -1 करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है? लेंथ ऑफ दिस एंटायर नेम माइनस पोजीशन ऑफ स्पेस। पूरे लेंथ कितनी है? 12। स्पेस का पोजीशन कितना था? 6। 12 - 6 कितना हुआ? शर्मा के कितने लेटर्स हैं? दैट्स द सेकंड मेथड। ठीक है, okay, so for the last name there are two methods. Method A is what? Length of full name minus length of first name -1। स्पेस को भी माइनस कराना पड़ेगा। ओके, व्हाट्स द सेकंड मेथड? लेंथ ऑफ फुल नेम माइनस पोजीशन ऑफ स्पेस। आपके ऊपर है क्या यूज करना है। एनी डाउट्स? नाउ दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। लेफ्ट राइट लगाने के लिए आपने 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए, एक लेंथ का, एक पोजीशन का। जब एक्चुअल डेटा के साथ काम करते हो, यू डोंट हैव दैट मच स्पेस इन योर CSV शीट, so you have to use formulas within the formula, and that concept is known as nested functions. Okay, so let's add the new row. How to add a new row? Select the row जहां पे add करना है, control plus. Okay, so above example can be done with the help of nested functions, that is function within the function. Okay, let's see how we can do that. I want the same two things, first name and last name. Okay, equals to left of what? The cell D42. How many number of characters do you want? अभी लॉजिक ही है, find the position of space, उसमें से -1 करा दो। ठीक है, how to find the position of space? किसी की पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं? Find function. So we are going to use find function. What do you want to find? Space. Where you want to find? Within the same cell. ठीक है, अभी इसको देखो, अगर मैं फाइंड को सिलेक्ट करूं, व्हाट इज द सैंपल रिटर्निंग? 6। रोहित के लिए कितने लेटर्स चाहिए? 5। तो व्हाट विल यू डू? 6 - ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? H31 -1, जहां H31 में कौन था? 6 ऑलरेडी। क्लियर टू एवरीवन? डन। ओके, लास्ट नेम, right of this cell. What was the logic we were using? I can either go with A or B, right? Let's go with B. Easy, क्योंकि number of parameters कम हो गए हैं। A वाले में तो फर्स्ट नेम लेनी तो फिर और एक का लेनी तो
राइट नेम लास्ट नेम फुल बनाएगा। क्या दोबारा बोलो। जैसे ए वाला लास्ट नेम वो फर्स्ट वाला करेंगे, तो अगर फर्स्ट नेम से 1 माइनस कर देंगे तो पूरा लास्ट नेम ढूंढना है ना। -1 से थोड़ी, -1 जो आप कर रहे हो फर्स्ट नेम से थोड़ी कर रहे हो, वो तो पूरे सेल में से होगा। ठीक है, तो इट्स नॉट डूइंग फ्रॉम हियर। अगर आप इसको समझो, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, ठीक है, लेंथ ऑफ फुल नेम क्या था? 12 है। फर्स्ट नेम की लेंथ कितनी आई? 5। 12 - 5 कितना हुआ? 7। शर्मा के कितने लेटर्स चाहिए थे? 6 चाहिए थे ना, तो -1 आपका किसके लिए है? स्पेस के लिए, और वो ओवरऑल सेल पे चले। ठीक है, चलिए, कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, राइट ऑफ द सेल। नाउ व्हाट टू डू? either A or B. Let's go with B. Length of this entire cell. Okay. Minus position of space. Position of space कैसे निकालोगे? Find लगा के, ठीक है। Find what? Space. Where you want to find? Within the cell. Close find, close right. Any doubts? Look at the formula and then look at the B formula that I have written above. दोनों को compare कर लो. Length of full name, length of D42, minus position of space, minus find function. ठीक है, अब इसको जरा एग्जीक्यूट करो पूरे सब्सट्रैक्शन को। कितना आउटपुट आ रहा है? 6। हमें 6 ही चाहिए था। That is how you can re-evaluate your formula before execution. But this thing is only happening जिनके पास 2016 के बाद का वर्जन है। Okay, done. All I need to do is what? Select both of them. Select the below range. Control D. Any doubts? ये आप इसको you can't रट्टा नहीं मार सकते हो इसका। It's entirely based upon the logic. जरूरी नहीं है कि हर बार find आपका ऐसे ही चलेगा. It can be something else. But these things are only going to work if you are able to build, able to make a logic first. ठीक है, but हाँ, first name last name की जब बात आएगी, most of the time this formula will be generic. Okay? किसका? फाइंड बेसिकली आप तभी यूज करते हो जब आपको नेम्स के साथ काम करना है या टेक्स्ट के साथ काम करना है, और ये तभी यूज होगा व्हेन यू आर वर्किंग विद लेफ्ट, राइट और मिडिल। ठीक है, एनीवन हैव डाउट्स हियर गाइस? लेट्स मेक दिस एग्जांपल अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। नेम्स, फर्स्ट नेम आई एम टेकिंग इज सचिन रमेश तेंदुलकर। फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है। ओके, एक और नाम बताओ। मयंक, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, लेट्स वर्क विद दीज टू नेम्स। एक और नेम ले लेते हैं जिसका मिडिल नेम नहीं है, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। तो व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद दिस थिंग, व्हाट शुड बी द लॉजिक? इफ लास्ट नेम, मिडिल नेम एंड फर्स्ट नेम आर देयर, तो 3 अलग अलग वैल्यूज में डिवाइड हो जाए। किसी का अगर एक चीज मिसिंग है तो वो कॉलम आपका ब्लैंक छूट जाए। दिस इज व्हाट यू वांट। ओके, तो हियर वी कैन टेक मिडिल नेम। चलिए, so I don't think anyone should find challenge in the first name and in the last name. Let's quickly find out the first name. Left, left of the cell. How many number of characters you want? It depends upon the position of space. अब जरा ध्यान से देखो, पहले दो names में 2 spaces हैं, तो ये चक्कर आपका पड़ेगा जब last name पे जाओगे, because you are not going to be interested in the first space, you will be interested in the second space. Okay, but anyway, let's complete the first name. Find. What do you want to find? Space. Where you want to find? Within this cell.
अगर स्पेस दो है तो हम दो एक ही बार में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी एक ही बार ढूंढोगे तो एक ही स्पेस को ना, वो कहां से उसको शुरू करना है, दैट्स द न्यू थिंग. ओके, व्हाट विल दिस रिटर्न? 7 ऑब्वियसली सचिन के 6 कैरेक्टर्स हैं. सचिन के लिए आपको 6 चाहिए, फाइंड आपको रिटर्न 7 कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है -1. ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दी फर्स्ट नेम. अब क्या फाइंड करोगे? लास्ट नेम. लास्ट नेम के लिए व्हाट वी कैन यूज? राइट ऑफ द सेल. कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए फॉर सचिन रमेश तेंदुलकर टू गिव द लास्ट नेम? तेंदुलकर के आई थिंक 9 कैरेक्टर्स बनते हैं, तो 9 चाहिए. धोनी के लिए कितने चाहिए? 5. शर्मा के लिए कितने चाहिए? 5. लास्ट नेम की बात करें ना हम लोग. ठीक, हाँ 6 सॉरी. अब लॉजिक बताओ मुझे, बिफोर आई टेल यू द सोल्यूशन. थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, क्या करोगे अब? सेकंड स्पेस का पोजीशन माइनस, सेकंड स्पेस का पोजीशन माइनस, मतलब टोटल लेंथ माइनस सेकंड स्पेस का पोजीशन. हाँ, दैट्स द मेथड 1. अब पूरा लेंथ निकाल लो, उसमें से सेकंड स्पेस की पोजीशन को माइनस करा दो, जो हम ऊपर भी कर रहे थे. हो जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ विल यू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस? से फर्स्ट और लास्ट में की पोजीशन को जब मिडिल को डालना है तो पूरे में से फर्स्ट और लास्ट स्पेस को, फर्स्ट और लास्ट मिडिल तो है ही नहीं अभी. इसमें तो दोनों मिडिल में भी स्पेस निकालनी है. मैंने बोला कि सेकंड पोजीशन निकालना है स्पेस का. ऐसे कह सकते हैं कि काउंटिंग राइट से स्टार्ट हो जाए. काउंटिंग ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम लेफ्ट. अगर राइट से होना तो फिर तो बात ही क्या थी. सो थिंक अबाउट दिस. लेट्स हैव द नेम्स. फंक्शंस पे बाद में आते हैं, पहले 2 चीजें फाइंड करते हैं. फर्स्ट स्पेस, ठीक है, व्हाट्स द पोजीशन, एंड सेकंड स्पेस. चलो, इक्वल्स टू, फाइंड कोट्स. कहां पे ढूंढोगे? विद इन दिस सेल. यू वांट टू स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम वेयर? वेरी फर्स्ट लेटर. तो थर्ड पैरामीटर तो यूज नहीं होगा स्टार्टिंग नंबर का. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू लीव इट. व्हाट्स द पोजीशन ऑफ स्पेस? 7. ये सही है. व्हेन आई ड्रैग द फॉर्मूला, इट्स वर्किंग फॉर एवरीवन. From where you want to start searching? I want to start searching from the very first letter, इसलिए मैंने third parameter use ही नहीं करा. So think about this. Look at the functions, guys. Any parameter which is written within the square brackets, that is optional. ठीक है, is the first parameter in square brackets? No. Is the second one in square brackets? No. But third square brackets में है ना, तो that means it's optional. चाहे ना भी यूज करो तब भी चलेगा function. अगर इनपुट देना है तो उसमें इंटीजर देना है कि मतलब कौन सा? इंटीजर तो नहीं दोगे आप. You can't give a static number. It has to be a number, but it can't be static. हाँ, ठीक है. अब मैनुअली जरा काउंट करो, ये कितनी पोजीशन बनती है सेकंड स्पेस की? पीछे से काउंट ही नहीं कर सकते. मैं वही बोल रही हूँ, फाइंड विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. लेफ्ट तो यही हुआ ना, ये 9 है यहाँ पे. ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो 16 आउटपुट आना चाहिए. ठीक है, इक्वल्स टू फाइंड. व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? स्पेस. कहां पे ढूंढना है? विद इन दिस सेल. अब स्टार्टिंग नंबर की जरूरत पड़ेगी. अब मैं नहीं कह सकती कि स्टार्टिंग नंबर 1 होगा. अगर 1 करोगे तो वो 7 रिटर्न करा देगा. यू वांट टू लुक फॉर अ स्पेस आफ्टर 7. ठीक है, तो कैन आई सेलेक्ट दिस थिंग, बट इसके अंदर +1 करना पड़ेगा. अगर आपने +1 नहीं किया, तो अगर आप 7 से स्टार्ट करो तो उसको पोजीशन तो 7 पे ही मिल गई ना स्पेस की, तो आउटपुट 7 ही रिटर्न करा देगा. 7 के बाद शुरू करना है. You have to start searching after the position of first space. तो 7 + 1 हो जाएगा. यही काउंट करा था हमने, 14 आ रहा था.
अच्छा मैंने 9 काउंट करा था यहाँ पे, सॉरी, ये 7 है ना, ये 7 है यहाँ पे। 8 9 10 11 12 13 14 सही है, ठीक है। एंड लुक एट दिस, इट्स वर्किंग। अब इसका कोई सेकंड स्पेस है ही नहीं है तो एरर है। एनी डाउट्स? अब यही सेम लॉजिक आपको सेकंड स्पेस वाला हैव टू राइट इन दी राइट नेम, ठीक है। तो लॉजिक क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द एंटायर नेम माइनस द पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस, ठीक है। सो लेंथ ऑफ एंटायर नेम कैसे फाइंड करोगे? लेंथ फंक्शन दिस सेल ओवर हियर माइनस, अब ये जो नीचे फाइंड लिखा था ना, सेम फंक्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू से, फाइंड व्हाट यू वांट टू फाइंड, स्पेस। कहां पे ढूंढोगे? विद इन दिस सेल, करेक्ट। Starting from where? 7 plus 1. Can you select the main cell from here? No. ये 7 कैसे आया था? फाइंड लगा के। अब इसके अंदर दोबारा चलेगा फाइंड। अगर मैं बोलूं थर्ड पोजीशन फाइंड करो स्पेस की, तो फाइंड विद इन फाइंड विद इन फाइंड, जितना नंबर ऑफ पोजीशन चाहिए उतने फाइंड इन्वॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? स्पेस वेयर? हियर। क्लोज द फाइंड, क्लोज द सेकंड वाला फाइंड, क्लोज द राइट। अब इसको समझो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एंटायर सेल? 23, सैंपल से दिख रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस फर्स्ट फाइंड? 7। तो अब जरा फॉर्मूला देखो, वी आर फाइंडिंग व्हाट? स्पेस। कहां पे ढूंढ रहे हो? D48 में। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 7 से, बट मेरे को 8 से करानी थी, तो यहाँ क्या करोगे? +1, ठीक है। तो ये जहां पे फाइंड बंद हुआ है ना अंदर वाला, +1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बन गया? 8, ठीक है। यू आर फाइंडिंग स्पेस इन द सेल D48 फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 8। ये जो ब्रैकेट आप डाल दो ये ऑटोमेटिकली रेड ब्लैक। हाँ वो ये देखो, दिस ब्रैकेट इज फॉर दिस फाइंड, दिस रेड ब्रैकेट इज फॉर दिस फाइंड, ये लास्ट वाला ब्रैकेट इज फॉर द राइट। तो अलग अलग डिस्टिंक्शन के लिए है, अपने आप होगा। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो आई राइट द लॉजिक इन द टेक्स्ट ओवर हियर। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड द राइट फंक्शन, ओके, ऑन द नेम्स कॉलम, ठीक है। देन व्हाट वी आर सेइंग, length of names minus position of position of second space, ठीक है। एंड आपने पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस कैसे फाइंड करी? पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस +1, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है, आधे घंटे बाद जब खुद एग्जांपल्स करने बैठोगे, दैट विल बी योर एक्चुअल टेस्ट। तो दैट इज व्हाई आई सेड इन द लास्ट क्लास कि जो भी क्लास में कर रहे हो, मेक इट अ हैबिट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इट ऑन योर ओन, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, ओके। एनी डाउट्स हियर? अब मिडिल नेम चाहिए, लॉजिक बताओ। ऑब्वियसली मिड लगेगा, दैट्स क्लियर, बट कैसे निकालोगे? मिड निकालना इज वेरी इजी। पूरे की लेंथ पता है, फर्स्ट नेम निकल जाएगा, माइनस द लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम माइनस द लेंथ ऑफ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम दोनों माइनस होंगे, -2, 2 स्पेस भी तो है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, इक्वल्स टू मिडल। लुक एट द पैरामीटर्स गाइस, व्हाट्स द फर्स्ट पैरामीटर? टेक्स्ट। कहां पे मिडल लगाना है? ऑन दिस सेल। व्हाट्स द सेकंड पैरामीटर? फ्रॉम वेयर योर मिडल स्टार्ट्स, कहां से मिडल स्टार्ट हो रहा है? यहां से R से शुरू हो रहा है, यहाँ पे S है, यहाँ पे तो है ही नहीं है मिडल नेम। ये यहाँ पे शर्मा क्यों नहीं आया? सो इसको बाद में देखते हैं, पहले भी यहाँ पे आ जाओ।
हाउ विल यू हाउ विल यू रीच दिस आर? आर पे कैसे पहुंचोगे अगर हम सब सचिन की बात करें? पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस +1, ठीक है. हाउ विल यू फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस? फाइन. व्हाट वी वांट टू फाइंड? स्पेस. वेयर वी वांट टू फाइंड? D48. +1 बाहर होगा, ठीक है. तो आप 8th पोजीशन पे पहुंच गए, मतलब 7th 8th जो भी है, ठीक है. अब यहां से कितने कैरेक्टर्स चाहिए? रमेश के लिए कितने कैरेक्टर्स चाहिए इंक्लूडिंग आर? हाउ मेनी लेटर्स यू वांट? 6. अब वो 6 कैसे लेके आना है? लेंथ ऑफ फुल नेम माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम माइनस लेंथ ऑफ लास्ट नेम -2, ठीक है. बट हमने जो फाइंड में +1 किया था उसमें हम ऑलरेडी 8th पोजीशन पे थे, तो इसमें हमारा हम फिर भी हम आपने बोला कि हमें लेंथ निकालनी है, मिडिल लेंथ को हम आर से निकालेंगे, तो हम आर को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना. ये देखो, आपने स्टार्टिंग यहां से करी, यस मैम. इसको इंक्लूड करके आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए? 6. वो 6 कैसे लेके आना है? आपको पूरे की लेंथ पता है, ठीक है. पूरे की लेंथ मान लो थी 23, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ मैं, ठीक है. सचिन की कितनी लेंथ है? 23 - 6 हुआ, सॉरी, ठीक है. फुल नेम की लास्ट नेम की कितनी लेंथ है? 9, ठीक है. अब पीछे कौन बचेगा? सचिन निकल गया, तेंदुलकर निकल गया, रमेश बचा और 2 स्पेसेस भी बचे. तो रमेश के पहले की स्पेस और रमेश के बाद की स्पेस, उसको भी तो निकालोगे, ठीक है. इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर, यू आर नॉट मेकिंग इट परमानेंट दैट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम आर ओनली और लेंथ भी आर से ही स्टार्ट होगा, वो नहीं होगा. लेंथ इज गेटिंग एप्लीकेबल ऑन द एंटायर सेल, ओके. ठीक है. अब यहाँ पे तो वैल्यू आ रहा है, दैट इज ओके, बट आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ D50? 12, ठीक है. We actually don't have a second. हाँ ठीक है, हमारे पास सेकंड स्पेस है नहीं है ना, ठीक है, वो एरर ही आएगा. तो ऐसे केसेस में तो हमें एक फॉर्मूला अलग से बनाना पड़ेगा सिंगल ऐसे नेम के लिए, तो बहुत बड़ा डाटा होगा. Whenever you are working with the actual data, you will be having the customer names or the employees names in one single format. एक ही फॉर्मेट में चलता है. यहाँ तो तीनों चीजें होंगी, यहाँ 2 चीजें होंगी. अलग अलग होता है. हाँ ठीक है. बट लेट्स से यू आर वर्किंग विद द डेटा जिसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन, so you have to segregate the data first and then apply the formula separately. Can we use events For separate? how will you separate? Logic क्या लगाओगे? If there are two spaces, then we'll have to. If there are 2 spaces in the entire cell, then what? Then you have to do for the middle name. Okay. For the first part. हाँ. If there aren't any two spaces, there is only one spaces, then we have to go to the first formula that you. You can do that. How will you find the 2 spaces? Count कैसे निकालोगे? That will be a challenge ना. In Python, it's. Python में तो it's a one line statement, उसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा. Excel में it's little tricky. उसके लिए what you need to do is ये जो हमने कॉलम्स बनाए थे ना यहाँ पे, ये आपको सेपरेटली पहले बनाने पड़ेंगे, उससे फिर हो जाएगा. हाँ कैसे? My question is how will you find the number of spaces? और लगा लोगे वो ठीक है, वो कैसे फाइंड करोगे? आप ये बोलो ना, काउंट इज इक्वल्स टू 1 और काउंट इज समथिंग लाइक दैट यू वांट टू डू. काउंट कैसे निकालोगे स्पेस का? Count blank. वो तो ब्लैंक सेल होता है, राइट. तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि कॉलम के टेबल के एंड में एक नया कॉलम बना लो, खुद से बनाना पड़ेगा. हाउ मेनी स्पेसेस देयर आर एक्चुअली इन ईच सेल, वो काउंट इफ से होगा, एरे फंक्शन. मिडिल नेम का फॉर्मूला से लेते हैं मिडिल नेम निकालने के लिए.
तो उसमें तो हमने डायरेक्टली मतलब जो पूरा लेंथ था उसमें से सब माइनस कर दिया, तो उसमें ये जो इनपुट मतलब कि ये स्टार्ट कहाँ से करना है, ये इनपुट देने की जरूरत क्यों थी, बिकॉज पूरे लेंथ में से पैरामीटर्स देखो, टेक्स्ट स्टार्ट स्टार्ट नंबर मीन्स आपका मिडल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा अगर हम हाउ विल यू टेल द अदरवाइज कि रमेश इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ऐसे तो मैं बोल दूं कि सचिन इज द मिडल नेम. लेकिन जो हम टोटल काउंट कर रहे हैं उसमें तो उस चीज का यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज हम बस टोटल लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्पेसेस और आगे पीछे का, तो स्टार्ट Look how function works. Where you want to apply the middle? From where the middle starts. That is what find plus 1 is doing for us. इतना clear है? ठीक है? That middle is starting from the letter R. Third parameter is number of characters, meaning from the position R. Actually, it's not actually from the position R. अगर आपने बोल दिया कि मेरा flag यहाँ पे है starting from here, मुझे R से कितने numbers लेके आने हैं? ये count 6 चाहिए आप. कैसे निकालोगे? काउंट के लिए आपको 6 लेके आना है. हाउ विल यू गेट दैट 6? फॉर रमेश इट 6, फॉर सिंह इट इज 5. हो सकता है किसी और का नाम हो उसमें राज कीवर्ड हो तो उसका 3 भी हो सकता है. तो वो तो तभी निकलेगा ना अगर ये सारी चीजें निग्लेक्ट हो रही है और ये 2 स्पेसेस भी बाहर जा रहे हैं. जब ये सब निकल जाएगा तभी मेरे पास ये 6 बचेगा ना पीछे. अगर आप ये बोल रहे हो कि जब हम स्टार्टिंग ही आर से कर रहे हैं, then why we are taking all the lengths and everything? This parameter over here is not associated with from where you are only starting. It has to do something with the entire middle function also. ठीक है. Length actually doesn't work on the starting position. ये length का parameter देखो जरा. Length is working on the cells. Length is not going to work on the value from where you are starting. Okay. We can do that by length of full name minus first space and second space. हाँ, वो भी कर सकते हो. If we give the value of 2, then we'll have to apply the formula with the middle name. If it gives us 1, then we'll have to apply a separate formula. You can do that also. If you are using this middle function, you want to find the position of this, the number of characters for Ramesh. तो length निकाल, number of characters के लिए क्या कर सकते हो? Position of second space minus position of first space. वो भी हो जाएगा. In any case, second space तो निकालना ही है. You can't do it without finding the second space. ठीक है? हाँ, फॉर्मूला छोटा हो जाएगा. That's on your understanding. हाँ, आप वो भी कर सकते हो. Any doubts, guys, here? Okay, just give me 5 more minutes, then I'll wind up the class. I want all the names in capital letters. So we have function called upper. You can apply upper on this cell. Done. Okay. All the names in the lowercase. So we have a function called lower. I want proper. Proper means only first letter should be in the uppercase. So proper, I can apply on this cell. इसमें सब कुछ ही capital है, ठीक है? Or you can go on to this one also, lowercase वाला. Look what happened. R became capital, S became capital, but बाकी सब convert हो गया small. That is how proper works. Okay. Done. I have a data here wherein we are saying 1, 2, 3, 4, 5. किसी का नाम है हर्ष. 1, 2, 3, 4, 5. You can see extra spaces होंगे. Starting में भी है, end में भी है. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? And here we have, let's say, Amit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है? Let's find the length. 15. Whereas the visible characters to you for Amit are 4 and Harsh के लिए 5 है. The extra spaces हैं. When you want to take care of the extra spaces, we have a function called trim. It removes the extra spaces from the beginning and from the end. Okay. So if I say trim
ठीक है, डन। अब लेंथ फाइंड करो। Make sense? Okay, so trim is going to remove the extra spaces from the beginning, from the end, but inconsistent formula. Inconsistency मतलब कि ऊपर कुछ और चल रहा है, नीचे कुछ और चल रहा है. It's that because of the spaces basically. But anyway, it's a text. If you want to ignore this thing, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ignore error. Formula तो सही है हमारा. ठीक है. अब कुछ ऐसा है, let's say 1 2 3 4 5 हर्ष, 1 2 3 4 and let's say गुजरात.